So we define inertia what? It is the inability of an object to change its state of rest or uniform motion unless until an external unbalanced force is applied. तो जब तक आप external force unbalanced force नहीं लगा रहे हो, it will never change its inertia. Okay. So one of the important point what? Inertia is the inability. Inertia is what? Inability. It is defined by inability. And what is the measure of inertia? I have written here. Mass is the measure. See, in many competitive exams, this has been asked. What is the measure of inertia? So mass is the measure of inertia of an object. Means अगर object का mass बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने train का example लिया, तो you can't change its inertia. If mass is large, means its inertia is large, and therefore to change the inertia, force will be more. If mass is small, then its inertia is small, and therefore to change the inertia, a small force will be required. Is it okay? और बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं उसको, ठीक है? So therefore we say that mass. सर आपने मास का डेफिनेशन दिया कि आपने किसी और का दिया? No, I have defined inertia, but see, any quantity has its measurement also. जैसे आप एज है, तो आपका एज है, किसी ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट लो, तो उसका एक मेजरमेंट होता है. तो इनर्शिया का मेजरमेंट क्या है? तो इट इज मेजर्ड थ्रू द मास. ओके ओके सर. So this is what I defined. Mass is the measure. It is clearly written. Mass is the measure of inertia of an object. Larger the mass, larger will be its inertia, and vice versa. Okay. Now there are three types of inertia. What are the types? One is called inertia of rest. Another is called inertia of motion, and third is called inertia of direction. Okay. So these are the three types of inertia. So inertia of rest. So it is the inability of an object to change the state of rest on its own. मतलब खुद से वो अपना रेस्ट का पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है. जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, इट विल नेवर चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. वो रेस्ट नहीं रहेगा. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन. मींस खुद से वो अपना मोशन का स्टेट चेंज नहीं कर सकता है जब तक एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स या कोई भी आप एज ए पर्सन यू डोंट अप्लाई द फोर्स. लाइक इफ द क्रिकेट bowler is throwing the ball, unless until cricketer applies the bat, he can't change the motion or even the direction, which is inertia of direction. Sir, but in other cases it could change its direction by non-human force, like man force के बिना क्या वो change कर सकता है? What which force you told? Sir, आपने अभी जस्ट समझाया कि बिना मैन पावर के वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता. तो क्या ये हर सब्सटेंस के लिए आप बोल रहे हैं कि ये बस कुछ ही के लिए बोल रहे हैं? नहीं, it is valid universally. Any object which is directed in some direction, it can never change its direction. सर, बट मॉडर्न टाइम्स में रॉकेट अगर आप ले लेंगे तो समझिए कोई बाय डिफॉल्ट अगर रॉकेट काम करना बंद कर दिया और वो पहले ऊपर जा रहा था, अब उसका जब फ्यूल खत्म हो गया तो वो डाउनवर्ड्स जाएगा. तो उसका डायरेक्शन तो चेंज हो. Yeah. So see, actually your question are very smart. See, therefore in very near future we are going to learn force, and you know these force are of two types. One is called, स्वास्तिक याद है आपको? One is called contact force. What are the variety of force? कितने force होता है? हाँ, varieties. One is called contact force, another is called non-contact force. So contact force, you are able to see that yes, two objects they are in touch. Contact force और non-contact force तो मतलब नीचे आता अलग-अलग forces, magnetic force और वगैरह. हाँ. So non-contact force means what? When the interacting objects are not in contact, still force is acting, then it is called non-contact force. But contact force means what? When the interacting objects are in contact, then only force will act. For example, muscular force. आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर मस्कुलर फोर्स लगा सकते हो क्या? बिना कांटेक्ट का नहीं. मतलब कि मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट फोर्स हुआ. जब तक कांटेक्ट आपको पुश करना है, तो अनलेस अंटिल यू अटैच योर हैंड विद दैट,
you can't apply this muscular force, means this is contact force. Okay, similarly a spring force, जब तक स्प्रिंग को किसी ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं करो, इट कांट अप्लाई स्प्रिंग फोर्स, मतलब कि कांटेक्ट फोर्स हुआ. टेंशन फोर्स, ग्रेविटी नॉन कांटेक्ट फोर्स में आएगा. yes, gravity is non contact force, means even if the objects are distance apart, still this force will act, and this is what is going to act in the case of rocket that you told. Rocket is in the air, but it is being acted upon by the mg force. आगे जाकर के मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है. And this mg force is acting on the rocket and therefore it is going to change its direction. अगर ये फोर्स नहीं लगता ना, आप आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे कि if the gravity free space is there, like these satellites or even these rockets, they are situated in gravity free space, and therefore once they are given some velocity, they will never lose it. जस्ट उनको एंड करेक्शन, वहां पर कुछ फ्रिक्शन फोर्स, थोड़ा बहुत एयर फ्रिक्शन आएगा, just to overcome that they are supplied some amount of energy. Okay, but to overcome gravity there is no force required. Are you okay with that? समझ में आ रही बात? तो रॉकेट अगर आपने भी क्या बोला, ओवरकम ग्रेविटी? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि रॉकेट होता है, चाहे इवन सैटेलाइट्स होते हैं ना, दे आर प्लेस्ड इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस. ग्रेविटी फ्री स्पेस में क्या है कि उनको फोर्स नहीं लग रहा है, बट स्टिल देयर आर एयर फ्रिक्शन and heat dissipation, a lot of things happens, and therefore they are supplied with some energy, okay, consistently to maintain their orbital velocity. But otherwise, because they are situated at gravity free space, and therefore there is no force required to overcome gravity. लेकिन जब तक अर्थ के ग्रेविटेशन के अंदर है, तब तक उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ का, and that force will cause its changing in its direction. आ रही बात समझ में? तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है. ये फोर्स लग रहा है, बट या इट्स नॉन विजिबल. व्हाई? बिकॉज ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना. लेकिन मस्कुलर फोर्स है तो हम लोग को दिख जाता है, जैसे बैट्समैन लगा रहा है. नॉन विजिबल? व्हाट यू टोल्ड? सर आपने भी बोला ना कि नॉन विजिबल होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. हाँ हाँ, नहीं तो वही बताया कि कांटेक्ट फोर्स जनरली विजिबल होता है, जैसे स्प्रिंग फोर्स कांटेक्ट में तो आप देख पा रहे हो, मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट में तो समझे. ओके, बट नॉन कांटेक्ट फोर्स, अब जैसे हम पर ग्रेविटी लग रहा है ना, हम कह सकते हैं कि सर हमने तो अगर जमीन से ऊपर उछला तो हम पर तो कोई फोर्स नहीं लगा, स्टिल आई अगेन केम बैक ऑन द अर्थ सरफेस. वही नहीं, आप पर लगा है फोर्स, ग्रेविटी फोर्स लगी है, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, आपको दिखेगा नहीं वो. अरे बात समझ में? मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट है, आप अगर एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से डिस्ट्रैक्ट करो तो वो इट विल गेट पुल्ड अवे, है ना, इट विल गेट पुश्ड अवे. लेकिन फोर्स आपको दिखेगा नहीं, लगेगा ये क्या, ये तो कुछ लगता है कि जादू हो रहा है, one object is just pushing another object without any force. But no, that force is acting, but that force is non-contact force, therefore we are unable to identify it. Okay, so this is your laws of inertia. Now what are the application of laws of inertia? I have taken some, like heating of the कैरम बोर्ड डिस्क. आप देखते हो कैरम बोर्ड डिस्क में अगर जो लोअर डिस्क पर हिट करो तो अपर डिस्क सारा रेस्ट पर रहेगा, बट ओनली लोअर डिस्क विल कम आउट. व्हाई? बाकी सारा का इनर्शिया रेस्ट में था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, एंड देयरफॉर दे विल रिमेन एट रेस्ट. आपने स्ट्राइकर से जब डिस्क पर मारा तो कौन सा हिट हुआ? लोअर वाले पर हिट हुआ, और लोअर वाले की चेंज इनर्शिया चेंज हुई, बाकी की चेंज इनर्शिया हुई नहीं. सो अदर विल रिमेन एट रेस्ट एंड दोज दैट मींस बॉटम मोस्ट विल कम आउट. अब देखो बहुत सारे कैरम प्लेयर्स होते हैं ना, तो वो ऐसे कर करके एक एक करके सारा आपका देखो डिस्क को वो मतलब कि होल में डाल देते हैं, and you will never get your turn only. Have you seen someone like that? So point is that why? Because they are changing inertia one by one. एक का inertia change किए बस, बाकी को ऐसे छोड़ दिए, है ना. Even some, like I have seen some YouTubers, they will do what? They will keep some you can say glass of water, okay, on disk or table disk, ठीक है, and they will keep a you can say cloth beneath it, and they will suddenly pull the cloth. You will find this glass of water will remain
without that means कि Yes, sir. It will remain stable. stable No without spinning, damage. it will remain stable. So Yes, sir. point is Yes, that sir. कि why they are changing the inertia of cloth, not the glass का inertia वो change नहीं करना. Sir, but अगर क्लॉथ उतना लाइक समझे रफ हुआ, जैसे कोई क्लॉथ को अगर आप Yes, सुखा so in that case what is जब happening? भिंगा देते हो तब फिर जब आप बाहर सुखाते हो तो आप देखते हो ना थोड़ा मतलब लाइक बीच बीच में रफ कर्व्स आ जाता है, तो उसके साथ करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है ना. नहीं, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट एंड फ्रिक्शन फोर्स विल चेंज द इनर्शिया ऑफ इवन ग्लास, है ना. आप अगर रफ कर देते हो Yes, उसको तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स विल चेंज द इनर्शिया ऑफ ग्लास एंड देयरफॉर ग्लास विल fall down. Therefore generally it is done with the silky dresses, silky cloths, okay, thin silky cloths, okay, like plucking of the mangoes by throwing a stone. हाँ आप सर. stone से throw किए तो क्या हुआ, डाल पर लगा and the connection of the mango and this stem has got into inertia of motion, and mango being heavy it will remain at inertia of rest and therefore it will get plucked down, okay. Similarly sending क्या है, sending back and forth while standing, अच्छा हाँ, bending back and forth while standing and starting and braking of the vehicle respectively. होता है ना, vehicle start करोगे तो आपको बैक बैकवर्ड आपको बेंडिंग मतलब कि जर्क मिलता है, जब ब्रेक लोगे तो फॉरवर्ड जर्क मिलता है. व्हाई? क्योंकि आपका बॉडी का लोअर पार्ट है विच इज इन कनेक्शन विद द व्हीकल, इट इज कमिंग इनटू इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना. रेस्ट के टाइम इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट तो उस पर फोर्स तो लग नहीं रहा है. सो दैट्स व्हाई अगर आप रेस्ट में हो इट विल, और आप स्टार्ट किए हो तो क्या होगा, बॉडी आगे बढ़ जाएगा लोअर पार्ट, बट अपर पार्ट विल रिमेन एट बैक पोजीशन ओनली एंड देयरफॉर यू विल गेट बैक बेंडिंग, ओके. अब फोर्थ बेंडिंग होगा जब ब्रेकिंग के टाइम में, क्योंकि अपर पार्ट आपका मोशन में है, लोअर पार्ट तुरंत रेस्ट में आ गया, तो क्या होगा, अपर पार्ट विल ट्राई टू कंटिन्यू इन मोशन एंड देयरफॉर you will bending forward, okay. हाँ सर. Similarly undusting of carpet. तो Carpet, हाँ बोलो. बस एक मतलब लाइक इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बस एक क्वेश्चन था. हाँ सर कुछ लोग को लाइक अपना बैग थोड़ा सा बेंड करके अच्छा लगता है, लाइक सीधा क्या रखना उन लोग के लिए हार्ड होता है. सर लाइक उनका बैग जो होता है वो लाइक सीधा रखना बिना सपोर्ट के थोड़ा प्रॉब्लम होता है. सर इज दैट समथिंग टू डू विद ग्रेविटी? Yeah, I will tell you actually what happens na, because body weight is very high and therefore we are advised to sit straight, because compressive strength, of course ये थोड़ा सा डेप्थ में चला गया पार्ट, अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के बाहर रहेगा, लेकिन फिर भी compressive strength of बोन जो होता है ना, दैट इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू बेंडिंग स्ट्रेंथ, है ना. तो इसी चलते जब हम लोग झुक करके बैठते हैं फॉरवर्ड या बैक, किसी तरीके से झुक करके बैठो, so that will create a high bending strength on the, you can say, bones, and therefore you will get a lot of back pain or you can say back problem. But if you are sitting straight, what happens, compressive strength is very high, और of course हमारे बॉडी में क्योंकि 70% वाटर होता है ना, so therefore it is heavy. आप सोचो ना, छोटे बच्चे लोग का भी देखो तो अगर नॉर्मल है 6, 7, 8 क्लास का बच्चा थोड़ा बहुत हेल्दी है, he will get 50-55 kg weight, okay. So it's heavy weight. आप सोचो 10 kg का उठा करके देखो आपको, it will be very difficult. So how much difficult is for the bone to carry a weight of even 20 to 30 kg? Can you understand? और अगर वही झुक करके बैठते हो तो it get a lot of bending strength, है ना. अब सोचो ना, एक लकड़ी लो, उसको बेंड करने का प्रयास करो और उसको कंप्रेस करने का प्रयास करो, कौन सा काम आसान होगा? बेंडिंग विल बी मोर इजियर देन compressing by लेंथ की तरफ से उसको दबा करके आप सोचो, तो इवन की थीन स्टिक है ना, और इवन थीन सिंक कर सकते हो, एकदम पतला लकड़ी, यू कांट compress it, लेकिन बेंड करना तुरंत तोड़ सकते हो. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. So that is why we get the backbone problem. And nowadays even you know, see, that's why I will tell you कि we must learn and we should be smart when we are purchasing the things. आजकल के जो vehicles आते हैं ना, they are meant to create problem. आप उनका देखो बैक जो देते हैं, क्या कहते हैं vehicles, उसमें क्या होता है, आपका बैक पेन बढ़ता है उससे, only you will get into problem. और ये डॉक्टर्स के द्वारा एडवाइस होता है कि आप ऐसा मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग करो ताकि पीपल दे गेट इनटू द प्रॉब्लम
and therefore they will visit doctors. पहले का देखो आपको व्हीकल जो पुराने जमाने का था वो क्या था, सीट यूज्ड टू बी स्ट्रेट, स्ट्रेट आप बैठो कभी भी आपको बैक प्रॉब्लम नहीं आएगा. इवन नाउअडेज द चेयर्स दे हैव अ लॉट ऑफ बेंडिंग एंड देयरफॉर यू गेट अ लॉट ऑफ बैक प्रॉब्लम. Most of the people I have seen that as soon as they will cross the age of 40-45 they will get back problem. Slip disc हो गया तो ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया. They will be using this waist belt होता है ना एक बड़ा सा मेटल वाला, so that belt they will be using. So point is that nowadays technology is rather to help the human society, it is involved in degrading the human society, you know. So we must be smart while dealing with all these things. Take some austerity, ठीक है, कंफर्ट थोड़ा कम रहेगा अगर जो आप नॉर्मल चीज यूज करते हो, बट दैट विल बी हेल्दी, है ना. और कोरोना टाइम में तो आपने देखा कि जिन लोग का अगर हेल्थ सही नहीं है तो हाउ मच डिफिकल्टी दे वेंट थ्रू, बट दोज हु आर वेरी मच डिसिप्लिन्ड इन देयर eating or you can say all the food habit, they hardly suffered any problem, you know. So that's why it's very important to be very much smart nowadays. Otherwise, on the name of technology, we may be spoiled totally. Okay, so अनडस्टिंग ऑफ कारपेट. कारपेट में आप अगर छड़ी से मारते हो, डंडे से मारते हो, क्या होगा, कारपेट आपका मोशन में आएगा बट डस्ट पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट एंड देयरफॉर दे विल गेट सेपरेटेड. ओके, सिमिलरली अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन इन द वॉशिंग ऑफ द डिशेस. आजकल जो 5 स्टार होटल होते हैं ना, तो वहां पर आप देखोगे कि डिशेस को साफ करने के लिए कुछ ज्यादा वो ऐसा नहीं कि मजदूर और पीपल दे यूज, दे विल जस्ट पुट इट इनटू द वाटर विद सम केमिकल्स, है ना, सो दैट इट कैन क्लीन, डिटर्जेंट्स इन द सेंस, एंड दे विल पास अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड क्या करेगा, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से उसको ऑसिलेट कर देगा. बट इट विल, तो उससे क्या होगा, अल्ट्रासाउंड देने से बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन प्लेट आपका मोशन में आएगा, लेकिन पानी के साथ जो टच में है आपका, यू कैन से remnants of the food particle, they will come into motion and they will leave the surface. Okay, so this is why ultrasound washing is used nowadays. Now we went through this Newton's second law of motion, but rate change of momentum is equal to the force acting on the body, or net force acting on the body is equal to the multiplication of mass and acceleration of the object. So F net is equal to mass into acceleration, मैंने बताया था, है ना. This is called Newton's second law of motion. ध्यान देना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इट डिफाइंस फोर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन माइंड रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स. कहोगे कैसे सर, ये तो इनर्शिया बताया, फोर्स कैसे. हमने यहाँ पर क्या बताया, अगर मास ज्यादा है मतलब इनर्शिया ज्यादा है, और ज्यादा इनर्शिया है तो फोर्स ज्यादा लगेगा उसको चेंज करने में. तो आप ये फोर्स का ही तो डेफिनेशन दे रहे हो ना, कि फोर्स इज you can say physical quantity which can change the inertia, and this change will depend upon the amount of inertia or amount of the object, मतलब mass of the object, है ना. So therefore we say that first law of motion defines force. So what is the second law of motion doing here? अब देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में तो हमने बोला F इक्वल टू ma, ये भी तो फोर्स को डिफाइन कर, नहीं, ये डिफाइन नहीं कर रहा है, ये ध्यान देना, ये फोर्स का वैल्यू दे रहा है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जस्ट बताया कि फोर्स क्या, सर मुझे यूनिट है, आई मीन वैल्यू, न्यूटन क्या बोले, मैं समझ नहीं पाया. न्यूटन सर, वो जो ब्रैकेट्स में आपने लिखा, हाँ हाँ, वो क्या लिखा सर? नहीं यही तो, ये फोर्स एफ नेट मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, वही बता रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको ये बताया कि फोर्स है क्या. तो फोर्स क्या है, उसको डिफाइन हमने कैसे किया कि इट इज एक्सटर्नल कॉज दैट विल चेंज द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट विल चेंज द एनर्जी ऑफ दिस. हाँ, तो उसने फोर्स को डिफाइन किया. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या किया, फोर्स को डिफाइन किया. अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन उस फोर्स के वैल्यू को दे रहा है, वो फोर्स कितना लगेगा, दैट वैल्यू इज बीइंग गिवन. तो हमने बोला क्या, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर ज्यादा फोर्स होगा तो एक्सेलरेट करने के लिए मास, सॉरी ज्यादा मास होगा तो एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स भी लगेगा, जो हमने वहां पर बोल रहा था कि मास इज प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया. तो वही बात है, हियर इट गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स. So that is what you have written. Newton's second law of motion gives the value of force acting on the object. First law of motion has defined the force, but second law of motion is giving the value, amount of the force acting on the object. Okay. So value of force, no? हाँ.
Acting on the object. Okay, Yeah, sir. value of force or amount of force, whatever we can say. Both are correct. Yes. Okay. Now, because we have used a word linear momentum, you can see it. We have used the term linear momentum, and that's why now we are going to define this linear momentum. So what is this linear momentum? It is the product of mass and velocity of any object, any moving object. Okay. It is also called the actual quantity of motion. Okay, what do you mean by this actual quantity of motion, and how this linear momentum is defining actual quantity of motion? अब समझो, देखो बहुत ही सिंपल है. पहले हाँ यहाँ पर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन आई विल कम बैक टू द पॉइंट. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो आई हैड डिफाइंड कि व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज गॉट डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. सर स्वास्तिक, डायरेक्शन और क्या? हाँ, एंड मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू. स्वास्तिक, आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो ना कि बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टॉट यू ऑल दिस थिंग्स. सर मैं सुन रहा हूँ. Okay, good. Of course, it will be a revision kind of thing, ठीक ना? Or don't worry, very soon we will come back to our that means कि the place where we were discussing and going ahead. Okay. So linear momentum, it is a vector quantity. So vector quantity we call those quantities which has magnitude as well as direction. जैसे समझो, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. मैं आपसे पूछा कि आपका हाइट कितना है. व्हाट इज योर हाइट आलोक? जस्ट अप्रोक्सीमेट, यू डोंट हैव टू गिव एग्जैक्ट वैल्यू. 5'3". 5 फीट. ओके, मान लो 5 फीट आपको मैं मानता हूँ कि 5 फीट आपकी हाइट है. तो अब ध्यान दो. सर 5'3". हाँ, एनीवे व्हाटएवर, जस्ट आई एम राइटिंग नाउ. अगर आपसे मैं पूछा कि आप और आपका स्वास्तिक एंड आलोक both are applying equal force on a car, or you can say a toy car, है ना? So will this toy car will move or will remain at rest? एक टॉय कार है छोटा सा, आप दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हो, तो ये रेस्ट पर रहेगा या मूव करेगा? बताओ. मूव करेगा. हाँ सर दोनों दूसरे साइड से कि एक ही साइड से? Yeah, now you got the point. See, I told just कि both of you are applying the force, equal force, so will this toy will move. आप क्या बोले कि सर दोनों एक साइड लगा रहे हैं या अलग अलग लगा रहे हैं, मतलब कि डायरेक्शन आपको जरूरत पड़ा. यू आर आस्किंग अबाउट द डायरेक्शन. मतलब कि हम अगर केवल ये बोल दें कि आलोक एंड स्वास्तिक दे आर अप्लाइंग इक्वल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, so this is not going to give the correct information or total information of the force, but total information will be gathered if I give direction also. Is it okay? So therefore those physical quantity which are explained completely using both magnitude as well as direction, so those quantities are called vector quantities. So they are like velocity, position, acceleration, force, momentum. So these are the vector quantity. मतलब इन quantity को आप जब तक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों नहीं दोगे, you can't define it completely. Okay? But there are other physical quantity. जैसे मैंने आपसे पूछा आपका हाइट क्या है, तो हमको भी ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि सर जमीन से ऊपर मैं 5 फीट लंबा हूँ. अरे भाई 5 फीट जमीन से ऊपर या नीचे हमको सब पता हो गया. आई नो व्हाट इज योर हाइट नाउ. आई डोंट नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, है ना? तो लाइक आपसे पूछा कि आपका हाइट से क्या होगा? नहीं, जस्ट आई एम आस्किंग कि एनी सी दिस द इंफॉर्मेशन. जस्ट मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन पूछा यहाँ पर कि आप दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हो तो ये मूव करेगा कि नहीं, जस्ट इंफॉर्मेशन था. आपने बोला कि सर डायरेक्शन क्या है, मतलब डायरेक्शन की जरूरत थी. लेकिन जब हाइट पूछे तो आप डायरेक्शन का कुछ वर्ड यूज किए क्या? नहीं यूज किए. मतलब कि इसमें केवल क्वांटिटी बता देने से काम चल गया. मतलब कि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाइट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अभी पूछा कि अच्छा कोलकाता का टेम्परेचर क्या है, आप बोलोगे सर
30 डिग्री सेल्सियस, ओके ओके, नॉर्मल ही चलो। अब आपको डायरेक्शन कुछ उसका है नहीं, है ना, जस्ट आप 30 डिग्री सेल्सियस बोले, आई गॉट द इन्फॉर्मेशन। लीव कर दिया। क्या क्या? स्वस्तिक लीव हो गया सर, बताना था। ओके आप ओके, प्रेजेंट कर रहे थे तो आपको पता हाँ नहीं हाँ, था, इसलिए बता दिया। तो वही मैं बोल रहा था, जस्ट लेट मी इन्फॉर्म यू। Okay, what I am doing, I am just ending this session and join it again, okay? Because this meeting is also about to सर सेम over. मीटिंग हो ना? Same meeting. जी सर। Okay, just wait. This Swastik has come, he is joining, so I will tell him also to rejoin. सर स्वस्तिक ने ज्वाइन कर लिया। हाँ, स्वस्तिक, अभी क्या है ना कि ये मीटिंग जस्ट 1 मिनट बचा हुआ है, तो हम लोग 1 मिनट बाद फिर से रिज्वाइन कर लेंगे, ठीक ना? ठीक है। हाँ, तो समझो, तो ये डिस्कस करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है? इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे फोर्स हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, पोजीशन हुआ। जैसे आपसे मैं पूछ दिया, आपका घर बेहाला से किधर पड़ता है, तो आप बोलोगे सर बेहाला से 1 किलोमीटर। मतलब बेहाला से 1 किलोमीटर हम किधर भी डायरेक्शन चले जाएंगे आपको घर मिल जाएगा क्या? नहीं। आप बोले कि सर न्यू टाउन में हमारा वो बस स्टैंड जो है वहां से 1 किलोमीटर। अरे, बस स्टैंड से अगर 1 किलोमीटर हम किसी डायरेक्शन में चले गए तो आपका घर मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। सो पॉइंट इज दैट कि यू मस्ट गिव मी डायरेक्शन ऑल्सो। भाई किधर? सर 1 किलोमीटर ईस्ट, 1 किलोमीटर वेस्ट, व्हाटसोएवर इट मे बी। So if you tell me that, then only I can understand कि हाँ आपका घर का डायरेक्शन क्या है। मतलब कि some physical quantities are there which cannot be completely defined unless until we give the magnitude as well as direction. So those physical quantities are called vector quantity. हालांकि आपके लिए इतना ही डेफिनेशन सही है, ठीक है, लेकिन आगे जाकर के थोड़ा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, बट दिस मच इज इनफ फॉर यू, ओके। एंड स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच ओनली रिक्वायर मैग्नीट्यूड, no direction is required to explain them completely, okay? So they are called scalar quantity, like density हो गया, height हो गया, mass हो गया, है ना, volume हो गया, density, temperature हो गया। So these are, you can say, scalar quantity, okay? So हाँ, तो mathematically we say it is P equal to mv, mass into velocity. So this is your momentum. अब ध्यान दो, why we call it actual quantity of motion? This is our question at all. बार बार मेरा यही क्वेश्चन है कि इसको एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मोशन कैसे कर रहे हैं, तो ध्यान देना, बहुत केयरफुली समझना। समझो कोई ऑब्जेक्ट है, मैं बोला सम ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्वास्तिक आप नहीं बताओगे, ये है, ठीक है। आप क्या करो, मीटिंग को फिर से ज्वाइन